Hey, welcome to the Sapiens Talk. So, in this video, we are going to see कि palpitations के साथ अगर कोई patient आता है, so how we can approach that patient और हम उसकी history कैसे ले सकते हैं. So, in this video, first of all, हम ये देखेंगे कि क्या algorithmic flow होता है palpitation की history लेने का. So, like a patient comes with palpitation. So, in your brain, first thing that should come is differential कि palpitations के क्या differentials हो सकते हैं. Then second कि हमें उस palpitation को elaborate करना है, जो complain है patient की, that is palpitation, उसको हमें elaborate करना होगा. That is history taking points. Then comes negative history to rule out other possible differentials. Negative history. And in this way, we will reach to a diagnosis by history taking. Okay. So now, what is palpitation? तो क्या होता है palpitation? देखिए, basically palpitation is unexpected or unpleasant awareness of the heart beating in the chest. What is palpitation? It is unexpected or unpleasant awareness of one's own heart बीटिंग इन द चेस्ट. रिमेंबर, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है वो है अवेयरनेस की. जो पेशेंट है वो ये बताएगा कि मुझे अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही है. यहाँ पे ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं किया गया है कि जिसमें कहा जा रहा हो कि पाल्पिटेशन का मतलब होता है हार्ट इज बीटिंग फास्ट और हार्ट इज बीटिंग स्लो. इट इज जस्ट दैट कि पेशेंट ये कह रहा है कि मुझे अपने दिल की धड़कन महसूस हो रही होती है. इट कैन बी फास्ट और इट कैन बी स्लो. Let's move forward. So, what are the differentials that जो सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि differentials क्या हैं, देखते हैं. So, see this pie chart. 43% causes are cardiac causes, first number पे. Then 31% causes are psychiatric. Then third number पे हमारा आता है some unknown causes, and fourth number पे there are some miscellaneous causes. Okay. So cardiac causes comes at first number. That is most common cause of palpitations are cardiac. So cardiac causes of palpitations को याद रखने के लिए एक सिंपल निमोनिक आप यूज कर सकते हैं. That is SAD, SAD. SAD. S stands for some structural heart diseases. A stands for arrhythmia. A stands for arrhythmia and D का means होता है dynamic. Dynamic means hyperdynamic और high output states. Okay. So okay. तो cardiac causes में क्या निमोनिक होता है? SAD, SAD. S stands for structural heart disease. A का मतलब होता है arrhythmias and D stands for hyperdynamic और high output state. इसमें इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारा वो होता है arrhythmias होते हैं. तो एरिथमिया भी कौन कौन से एरिथमिया होते हैं जो कि पाल्पिटेशन करा सकते हैं. सी अगेन देयर इज अ निमोनिक SAVE, SAVE. S stands for SVT, that is supraventricular tachycardia. A stands for atrial fibrillation. V stands for ventricular tachycardia. E stands for extrasystole. In extrasystole there comes premature atrial contraction and premature ventricular contraction. Okay. So here are the differentials. और structural heart disease कौन सी होती हैं देखते हैं और क्या hyperdynamic और high output states होती हैं इसको भी हम देखेंगे आगे. Okay, now moving further. Cause of palpitation, let's see. So हमने ये डिस्कस किया अभी. कार्डियक में structural S, A for arrhythmia, D for hyperdynamic और high output state. arrhythmia हमने देख लिया था. SVT, A से atrial fibrillation, V से VT and E से extrasystole. Okay. स्ट्रक्चरल में देखिए क्या क्या कॉजेज आते हैं. सबसे पहले एट्रियल मिक्सोमा विच इज अ ट्यूमर ऑफ द हार्ट, एट्रियल मिक्सोमा. सेकंड नंबर पे आता है वाल्वुलर हार्ट डिजीज. थर्ड नंबर पे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकता है. फोर्थ पे कार्डियोमायोपैथी. फिफ्थ पे मिट्रल वॉल प्रोलैप्स एंड सिक्स्थ पे पेसमेकर. ओके.
इसमें से भी अगर आपको कुछ ही कॉजेज याद रखने हो तो आप लाइक वाल्वुलर हार्ट डिजीज याद रख सकते हैं। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन उठता है कि वाल्वुलर हार्ट डिजीज में भी कौन से वाल्वुलर हार्ट डिजीजेस होते हैं जिसमें कि आपको पाल्पिटेशन देखने को मिल सकता है। सी, इन वाल्वुलर हार्ट डिजीज मोस्टली रिगर्जिटेंट लीजन्स आर सपोज टू प्रोड्यूस Regurgitant lesions are supposed to produce palpitation. Regurgitant lesions like what? AR or MR. But there can also be some stenotic lesions which can produce palpitations. Stenotic lesions which can produce palpitation. तो कौन से होते हैं वो stenotic lesion? That is MS, mitral stenosis, which is very commonly linked with atrial fibrillation. Okay. So ये structural causes हो गए. Here arrhythmia. देन हाइपरडायनेमिक और हाई आउटपुट स्टेट, रिमेंबर दिस, ये जो कॉजेज हैं ये कई बार आपके आते हैं स्पेशली एग्जामिनेशन सेक्शन में। एनीमिया, बेरी, फीवर, प्रेगनेंसी, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। ओके, अगेन सी, एनीमिया, बेरी, फीवर, प्रेगनेंसी, एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस। तो ये कुछ हो गए आपके हाई आउटपुट स्टेट। देन सेकेंड कॉमन साइकेट्रिक कंडीशन। साइकेट्रिक कंडीशन में क्या होते हैं? एंजाइटी, डिप्रेशन एंड पैनिक डिसऑर्डर्स। तो ये तीन कॉजेज हो गए आपके साइकेट्री के अंदर। देन मिसलेनियस हमने देखे थे। मिसलेनियस में आपके ड्रग्स आ जाते हैं, सर्टेन ड्रग्स होते हैं जिनकी वजह से पाल्पिटेशन हो सकता है। देन सम सर्टेन एंडोक्राइन कंडीशन दैट कैन प्रोड्यूस पाल्पिटेशन एंड सम इमोशनल स्ट्रेस और हाइपरवेंटिलेशन। तो ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं? अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन, कोकेन, दीज थिंग्स। अल्कोहल, कैफीन, निकोटीन एंड कोकेन। ओके, एंड देन बीटा एगोनिस्ट, T stand for theophylline, A for amphetamine. You can remember this like by A, B, C. A stands for alcohol, B stands for beta agonist, A for also there can be amphetamine, C stand for cocaine, caffeine, cocaine or caffeine. Okay. एंडोक्राइन में क्या कॉजेज हो सकते हैं? हाइपरथायरॉयडिज्म और थायरोटॉक्सिकोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड हाइपोग्लाइसीमिया। ये थ्री कॉजेज। ओके, थायरोटॉक्सिकोसिस, फियोक्रोमोसाइटोमा एंड हाइपोग्लाइसीमिया। ओके, you can remember this by PTH. P stands for pheochromocytoma, T stands for thyrotoxicosis and H stands for hypoglycemia. That's all. एंड देन थर्ड नंबर पे इमोशनल स्ट्रेस और हाइपरवेंटिलेशन। सो ये हमारे हो गए कॉजेज ऑफ पाल्पिटेशंस। आगे चलते हैं। तो हमने सबसे फर्स्ट स्टेप देखा एल्गोरिथम का कि डिफरेंशियल्स क्या हो सकते हैं एक पाल्पिटेशन के। आगे चलते हैं। नाउ कम्स हिस्ट्री टेकिंग पाल्पिटेशन, कि हम अब हिस्ट्री कैसे लेंगे? हमें डिफरेंशियल्स तो पता है, लेकिन अब क्या किन स्टेप्स में हम हिस्ट्री लेते हैं? लेट्स सी। सो हियर कम्स 9 पॉइंट्स। यहाँ पे 9 पॉइंट्स हैं। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन, इज द सेंसेशन वन ऑफ द हार्ट बीटिंग एबनॉर्मली और समथिंग एल्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कंफर्म करना है कि जिस कंप्लेन के साथ पेशेंट आ रहा है क्या वो एक्चुअली पाल्पिटेशन ही है या कुछ और तो नहीं है। पेशेंट हो सकता है मे बी बोले कि चेस्ट में कुछ उसको अजीब सा लग रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही, वो हो सकता है क्लियरली ना बता पाए कि उसको एक सेंसेशन फील हो रहा है कि उसका हार्ट तेज रैपिडली बीट कर रहा है या अवेयर है अपने हार्ट बीट से। तो जरूरी नहीं है ऐसा पेशेंट बता पाए, हो सकता है पेशेंट जस्ट बोले कि मुझे मेरे छाती में कुछ अजीब सा लग रहा है। तो आपको ये कंफर्म करना है सबसे पहले कि हाँ वो जो चीज पेशेंट एक्सपीरियंस कर रहा है वो एक्चुअली पाल्पिटेशन ही है। इवन समटाइम्स क्या होता है, जो हमारा चेस्ट मसल्स हैं उसमें ट्विचिंग होती है विच कैन बी परसीव्ड एज पाल्पिटेशन। सो फर्स्ट थिंग इज कि आप इस्टेब्लिश करें कि जो कंप्लेन है पेशेंट को एक्चुअल में पाल्पिटेशन ही है या कुछ और तो नहीं है। ओके, नाउ मूव टू सेकेंड थिंग, ऑनसेट, कि ऑनसेट कैसा था पाल्पिटेशन का, तो पेशेंट से पूछना है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द एरिथमियाज होते हैं वो यूजली स्टार्ट एंड स्टॉप सडनली स्टार्ट होंगे, सडनली स्टॉप हो जाते हैं। ओके, बट सर्टेन पाल्पिटेशन कैन बी ग्रेजुअल, कि ग्रेजुअली स्टार्ट होता है, ग्रेजुअली डेवलप होता है और ग्रेजुअली खत्म होता है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये किस में होता है? साइनस टैकीकार्डिया। साइनस टैकीकार्डिया में आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि जो पाल्पिटेशन वो ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है एंड ग्रेजुअली वो खत्म हो जा रहा है। ओके, वेयर एज मोस्ट ऑफ द जो अरिथमियाज होते हैं वो सडनली स्टार्ट होते हैं और सडनली टर्मिनेट कर जाते हैं। और इसमें भी
अगर आप देखें तो स्टार्ट एंड स्टॉप वेरी सडनली अगर कहा जाए तो एसवीटी में ये देखने को मिलता है। एसवीटी बहुत ही जल्दी स्टार्ट होते हैं, बहुत जल्दी टर्मिनेट भी हो सकते हैं। ओके, नाउ मूव टू प्रोग्रेशन। ओके, प्रोग्रेशन। सो हमें पेशेंट से पूछना है, ठीक है आपको पाल्पिटेशन हो रहा है, आपको अपनी हार्ट बीट महसूस हो रही, पर क्या वो बहुत तेज भाग रही है या बहुत ही स्लो है? और अगर पेशेंट बता सके तो वो बता दे कि 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा था उसका दिल। तो मे बी पेशेंट ने नोट किया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं नोट किया तो भी कोई बात नहीं। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन इज इट फास्टर देन इट एवर गोज एट एनी अदर टाइम? फॉर एग्जाम्पल विद एक्सरसाइज, सी हम जब नॉर्मली एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी एक्सर्शन एक्टिविटी करते हैं तो वी गेट टेकिकार्डिया, हमें टेकिकार्डिया होता है और हमें पाल्पिटेशन फील होता है, हमें अपनी हार्ट बीट महसूस होती है, बट दैट इज नॉट एबनॉर्मल। सो हमें ये सेंटेंस बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि आप पेशेंट से कंफर्म करें कि क्या वो जब उसे पाल्पिटेशन आ रहे हैं तो उस समय कोई एक्सरसाइज तो नहीं कर रहा था, और अगर एक्सरसाइज करता है कभी भी उस टाइम जितनी हार्ट बीट होती है उसकी, इस बार उससे ज्यादा हार्ट बीट आ रही है, सो दैट कैन पॉइंट टुवर्ड्स सम एबनॉर्मलिटी लीडिंग टू पाल्पिटेशंस। देन फोर्थ थिंग इज रिदम क्या थी पाल्पिटेशन की, क्या जो पाल्पिटेशंस हो रहे थे वो रेगुलर इंटरवल पे हो रहे थे, या जो बीट परसीव हो रही थी वो रेगुलर इंटरवल पे हो रही थी या इरेगुलर इंटरवल्स पे हो रही थी? तो ये कैसे पता लगाते हैं? सो इसके लिए हम पेशेंट को जनरली बोलते हैं टैप आउट करने को टेबल पे, जो भी सामने उसके टेबल है पेशेंट को उस पर कहिए कि टैप करके बताए कि क्या रिदम कैसे जनरेट हो रही थी, तो उससे आप क्लियरली पता लगा सकते हैं कि उसकी जो पाल्पिटेशन की बीट्स थी या रिदम था वो रेगुलर था या इरेगुलर था। ओके, सी अच्छा, मान लीजिए अगर इरेगुलर होता है, मान लो अगर पेशेंट कहता है या पेशेंट जब नॉक करता है तो आपको दिखता है कि इरेगुलर रिदम है इसकी, तो फिर अगला सवाल रहता है हमारा, क्या आपको ऐसा लगा कि आपका हार्ट या आपकी जो दिल की धड़कन है वो अचानक से रुक गई, स्टॉप, और फिर से स्टार्ट हो गई, या नॉर्मल बीट इंटरप्टेड बाय मिस्ड और स्ट्रॉन्ग बीट, बोथ आर सेम थिंग। तो अगर पेशेंट का रिदम जो है या पाल्पिटेशन का जो रिदम है वो इरेगुलर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हार्ट अचानक से रुक गया और फिर रुका, फिर से धड़कने लगा, और जब अगली धड़कन आई वो और तेज आई? ओके, अगर ऐसा मिल रहा होता है, यस, सो इट इज बेसिकली एक्टोपिक बीट। एक्टोपिक बीट जो हमने देखा था SAVEE में एक्टोपिक बीट होते हैं वो। और अगर ऐसा नहीं हो रहा होता है, जस्ट बीट जस्ट कंप्लीटली इरेगुलर है, कोई मिस्ड बीट नहीं है, तो ये देखने को मिलता है आपके एट्रियल फिब्रिलेशन में। ओके, तो प्रोग्रेशन हमने देख लिया कि पहले पूछना है कि क्या आपकी दिल की धड़कन तेज हो रही थी या धीमे हो रही थी, क्या आपने उसको काउंट किया 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है, क्या वो जब भी आप पहले कभी एक्सरसाइज करते हैं उस वक्त जितनी दिल की धड़कन होती क्या उस इस बार उससे भी ज्यादा जो है रेट था उसका, और रिदम क्या है जस्ट बाय टैपिंग द टेबल। और देन फिफ्थ थिंग इसी में हम पूछ सकते हैं NYHA फंक्शनल क्लासिफिकेशन भी हम उससे एलेबरेट करा सकते हैं। हो सकता हो आज से 3 महीने पहले वो NYHA क्लास 1 में रहा हो और इस वक्त उसको वो NYHA क्लास 3 में आ गया, तो बेसिकली एक प्रोग्रेशन को नोट करने के लिए या डिजीज सीवियरिटी को असेस करने के लिए हम NYHA क्लासिफिकेशन को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, सो या नेक्स्ट थिंग ड्यूरेशन। सो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि एरिदमियाज जो होते हैं वो जनरली सडनली स्टार्ट होते हैं और सडनली टर्मिनेट कर जाते हैं, बट हमने देखा जो सेकंड मोस्ट कॉज होता है पाल्पिटेशन दैट इज साइकोजेनिक, तो वो हो सकता है कि 15 मिनट से ज़्यादा लास्ट करे, 15 मिनट से ज़्यादा लास्ट कर सकते, तो ड्यूरेशन का ये बात हो गई। देन कम्स एक्सेजरेटिंग और रिलीविंग फैक्टर। सो देयर कैन बी सम एक्सरसाइज, एक्सेजरेटिंग फैक्टर कैन बी सम एक्सरसाइज की वजह से एक्सेजरेशन हो सकता है, अल्कोहल, कैफीन, और इट कैन बी स्पॉन्टेनियस दैट कोई एक्सेजरेटिंग फैक्टर नहीं है। ओके, then relieving factor, some vagal maneuvers can cause relief to the palpitation. vagal maneuvers especially अगर supraventricular tachycardia में होता है पेशेंट तो उसको रिलीफ मिल जाता है अगर वो vagal maneuvers परफॉर्म करता है। ओके, एसोसिएटेड फीचर्स पे देखते हैं। सो बेसिकली हमें पेशेंट से पूछना है कि क्या आपको जब पाल्पिटेशंस हो रहे थे या आपको जब अपनी दिल की धड़कन महसूस हो रही थी तो क्या उसके साथ आपको कोई और भी दिक्कत हो रही थी? क्या आपके छाती में दर्द हो रहा था, या सांस लेने में दिक्कत, या फटीगनेस थी?
सो बेसिकली अगर ये चीजें होती है पाल्पिटेशन के साथ तो इट पॉइंट्स टुवर्ड स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज की पेशेंट सम स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज से सफर कर रहा है। अगली चीज, क्या आपको साथ में बेहोश हो गए थे आप, या चक्कर आ रहा था, या सर भारी भारी सा लग रहा था, या हल्का लग रहा था? सो दिस पॉइंट टुवर्ड वीटी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, सिनकपी एंड लाइट-हेडेडनेस सीन विद पाल्पिटेशन सीन इन वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पॉलीयूरिया या पोस्ट पाल्पिटेशन डायूरेसिस, कि क्या आपको जब पाल्पिटेशंस हो रहे थे वो खत्म हो गए तो उसके बाद आपने ज्यादा अमाउंट में यूरिन पास किया, सो हो सकता है ये। और ये किसमें देखने को मिलता है? एसवीटी एंड एट्रियल फिब्रिलेशन में पोस्ट पाल्पिटेशन डायूरेसिस और पॉलीयूरिया देखने को मिल सकता है। नेक पाउंडिंग, क्या आपके पाल्पिटेशन के साथ नेक में कुछ महसूस हो रहा था, आपको नेक में पाउंडिंग हो रही थी? सो ये किस में देखने को मिल सकता है? एसवीटी में देखने को मिल सकता है, और एवी डिसोसिएशन में ये देखने को मिल सकता है आपको। ओके, सो बेसिकली दीज 6 पॉइंट्स जो हमने शुरू के 6 पॉइंट डिस्कस करी, ये आपके पार्ट होंगे एचओपीआई, दैट इज हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस। नेक्स्ट ये जो 2 पॉइंट्स हैं, हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर और एमआई, इसको आप पास्ट हिस्ट्री में रख सकते हो। ओके, देन फैमिली हिस्ट्री, तो फैमिली हिस्ट्री के सेक्शन में चली जाती है। ओके, लेट्स सी। So, why it is important to ask about history of heart failure or MI or certain structural heart diseases, or why it is important to ask here family history? See, actually, if you see VT, ventricular tachycardia, तो basically ventricular tachycardia कुछ features होते हैं कि ventricular tachycardia में there can be history of previous MI की history हो सकती है, या cardiac surgery की history हो सकती है। वीटी अभी पहले ही बताया कि वीटी कैन बी एसोसिएटेड विद सिनकपी, वीटी कैन बी एसोसिएटेड चेस्ट पेन। वीटी में फैमिली हिस्ट्री हो सकती है सडन कार्डियक डेथ की। वीटी कैन बी एसोसिएटेड विद डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम, और वीटी में आपका स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज भी देखने को मिल सकता है। ओके, सो ये बेसिकली ये सिग्निफिकेंस है पूछने का कि हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर है क्या आपको, या एमआई आपको कभी हुआ, तो बेसिकली यू कैन सी द रिकॉर्ड्स ऑफ द पेशेंट। एंड फैमिली में क्या अभी किसी को सडन कार्डियक डेथ या किसी को भी डेथ हुई जिसका कारण कार्डियक था, ये आप पूछ सकते हो, तो ये भी एक सर्टेन डायग्नोसिस की ओर लेकर के जाता है आपको। ओके, देन 9th थिंग इज सीवियरिटी। सीवियरिटी पूछ सकते हैं आपकी, लाइक जब आपको पाल्पिटेशन हो रहा था, बहुत तेजी से वो पाल्पिटेशन हो रहा था, आप बैठ गए एकदम, कुछ कर नहीं पा रहे थे, जो है दैट इज सीवियर। तो 9 पॉइंट्स आर देयर, लेट्स सी अगेन। सबसे पहले, क्या जो दिल की धड़कन महसूस हो रही है पेशेंट को वो एक्चुअली पाल्पिटेशन है या समथिंग कुछ और तो नहीं है, ये कंफर्म करना होगा आपको। सेकंड, कि क्या ऑनसेट क्या है, पाल्पिटेशन का ऑनसेट क्या है, क्या अचानक से शुरुआत हो गया या धीरे धीरे शुरुआत हुई पाल्पिटेशन की। थर्ड इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन में भी आप 5 चीजें हमने देखी थी, क्या क्या थी? सबसे पहले, क्या जो पाल्पिटेशंस हो रहे थे वो बहुत ही फास्ट हो रहे थे या स्लो स्लो हो रहे थे, और लगभग अगर बता सकें आप तो ये बता दीजिए कि कितनी बीट्स थी इन अ मिनट, और क्या वो हमेशा से तेज था, लाइक पहले कभी आप एक्सरसाइज करते तो उस वक्त जितना हार्ट बीट होता इस बार उससे तेज आ रही है हार्ट बीट। रिदम क्या है, रिदम क्या थी उस वक्त हार्ट की, और यू कैन ऑल्सो एड NYHA फंक्शनल क्लासिफिकेशन इन दैट। देन ड्यूरेशन, कितने समय तक बना रहा ये पाल्पिटेशन। देन आपको क्या ऐसा लगा कि कोई कुछ चीज की वजह से ये बढ़ा है, या कुछ खाने की वजह से या कुछ करने की वजह से ये अचानक से शुरू हुआ, और आपने क्या ऐसा किया कि जिसकी वजह से ये रुक गया। दैट इज रिलीविंग फैक्टर। एसोसिएटेड फैक्टर्स, क्या आपको पाल्पिटेशंस के साथ साथ छाती में दर्द, चेस्ट पेन हो रहा था, या डिस्निया हो रहा था, या फटीग हो रहा था, या सिनकपी हो हुई, बेहोश हो गए, या पॉलीयूरिया पोस्ट पाल्पिटेशन डायूरेसिस, और निक पाउंडिंग इज देयर। देन क्या सम देयर इज हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर और एमआई, फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछना है। देन सीवीआरटी, सो you can remember it by mnemonic OPD eras. O for onset, P for progression, D for duration, E for exacerbating factor, R for relieving factor, A for associated symptoms, S for severity. Here it is. Okay, let's move further. Let's see each arrhythmia separately. It is important. Okay, so here are extrasystole, sinus tachycardia, supraventricular tachycardia, atrial fibrillation, ventricular tachycardia. Okay, let's see. Onset. So मैंने सबसे पहले शुरू में ही बताया था कि साइनस टैकीकार्डिया जो होता है स्टार्ट एंड स्टॉप ग्रेजुअली,
साइनस टैकिकार्डिया ग्रेजुअली स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली स्टॉप होता है, वेयर एज मोस्ट ऑफ द अदर एरिथमियाज दे स्टार्ट एंड स्टॉप वेरी सडनली। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, 1 मिनट। सो एक्स्ट्रासिस्टोल onset is sudden, sinus tachycardia gradual onset, SVT sudden onset, okay, atrial fibrillation again sudden, VT is again sudden, so all are sudden except sinus tachycardia. Character कैसे होता है? So see, only atrial fibrillation is irregular, have irregular rhythm. बाकी साइनस टैकिकार्डिया में रेगुलर फास्ट होता है, एसवीटी भी रेगुलर होगा फास्ट होगा, वीटी भी रेगुलर होगा फास्ट होगा। और एक्स्ट्रासिस्टोल में बेसिकली मैंने बताया था कि पेशेंट क्या कहता है कि मेरी एक बीट मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा हार्ट अचानक से रुक गया और फिर अगेन स्टार्ट हुआ या मिस्ड कर दिया बीट को। ओके, तो कैरेक्टर, ओनली वन थिंग इज इरेगुलर, दैट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। देन एसोसिएटेड फीचर्स में आते हैं। सो इन एसवीटी में आपको पॉलीयूरिया देखने को मिल सकता है एसोसिएशन में, एट्रियल फिब्रिलेशन में भी पॉलीयूरिया देखने को मिल सकता है। वीटी में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिनकपी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एसवीटी में पॉलीयूरिया के साथ साथ लाइट हेडेडनेस और चेस्ट टाइटनेस भी हो सकता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में पॉलीयूरिया के साथ ब्रीथलेसनेस एंड सिनकपी इज अनकॉमन। ओके, एंड हियर इन वीटी देयर इज प्री सिनकपी एंड चेस्ट टाइटनेस। So remember this highlighted words. Then timing comes to timing. Extrasystole is of brief duration. Sinus tachycardia lasts for few minutes. SVT minutes to hours. SVT की duration थोड़ी long हो सकती है. And atrial fibrillation and VT are variable duration के हो सकते हैं. Okay? Atrial fibrillation, VT variable duration के हो सकते हैं. SVT minutes to hours तक लंबा था थोड़ा. Sinus tachycardia just few minutes. Okay, exacerbating and relieving factors. So in extrasystole, fatigue, caffeine, alcohol may trigger extrasystole, and extrasystole often relieved by walking पे relief हो जाएगा extrasystole. Sinus tachycardia, exercise or anxiety may trigger sinus tachycardia. Okay. SVT में क्या होता है? SVT यूजली रेस्ट पे होता है। SVT में कोई एक्सरबेटिंग फैक्टर आपको जरूर नहीं मिले, या हो सकता है ट्रिवियल मूवमेंट, छोटे मोटे मूवमेंट्स आप कर रहे हैं उसकी वजह से SVT हो सकता है, लाइक बेंडिंग। एंड एसवीटी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सम सर्टेन वैगल मैन्यूअर्स होते हैं जिसको पेशेंट अगर परफॉर्म करता है तो उसका एसवीटी टर्मिनेट कर जाता है। नेक्स्ट, एट्रियल फिब्रिलेशन। अगेन एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वीटी आर ऑफन स्पॉन्टेनियस। एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वीटी स्पॉन्टेनियसली होते हैं, इसका कोई एक्सरबेटिंग फैक्टर और रिलीविंग फैक्टर नहीं होता है। रिलीविंग फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे किसका होता है? एसवीटी का होता है, जिसमें हम लोग वैगल मैन्यूअर्स देखते हैं। ओके, नाउ मूव फर्दर। सीवियरिटी। See, VT is often severe. VT is often severe. Rest here, extrasystole mild, sinus tachycardia mild to moderate, SVT moderate to severe, atrial fibrillation is variable, but VT is severe. Okay, so this is an important chart. Please remember this. Okay, then yeah, vagal maneuvers. So these are the some vagal maneuvers. अगर पेशेंट इसको परफॉर्म करता है तो उसका एसवीटी रिलीफ मिल जाता है। क्या होते हैं वैगल मैनूवर्स? लाइक ब्रेथ होल्डिंग और टेकिंग डीप ब्रेथ, कफिंग, डूइंग कैरोटिड मसाज, स्वेलोइंग कोल्ड वाटर और स्वेलोइंग आइस क्यूब। तो ये कुछ होते हैं। सी दिस फिगर, होल्डिंग ब्रेथ वाइल बियरिंग डाउन टू इंक्रीज द इंटरथोर, बेसिकली ब्रेथ होल्डिंग है ये। सेकंड क्या है? ब्रीथिंग हार्ड इनटू द सिरिंज अगेंस्ट प्रेशर टू इंक्रीज इंट्राथोरेसिक प्रेशर। दिस इज आल्सो वन ऑफ द वैगल मैनूवर। Raise leg abruptly to increase venous return. Okay. Submerge face into cold water में submerge करने पे face relief मिल जाएगा. This is carotid sinus massage. Carotid sinus massage and adenosine on the treatment for SVT. So these are the vagal maneuvers. Okay. Vagal maneuvers for SVT, supraventricular tachycardia. See, this diagram explains about extrasystole. Okay, what is patient saying? See, it feels like my heart missed a beat. पेशेंट क्या बोलेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एक हार्ट बीट मिस हो गई है, या मेरा हार्ट अचानक से रुका और फिर से स्टार्ट हो गया। और सी दिस अगेन, इट फील्स लाइक माई हार्ट मिस्ड अ बीट फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग थंब। मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक बीट मिस हो गई और उसके बाद जो बीट आई वो बहुत ही स्ट्रांग थी। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली लेट्स सी, फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी कॉन्सेप्ट इज देयर। सो देयर इज नॉर्मल बीट, then comes early ectopic beat, and due to this early ectopic beat there will be less filling,
Then this early ectopic beat followed by कंपनसेटरी पॉज. तो इस कंपनसेटरी पॉज में क्या होता है कि एक्स्ट्रा फीलिंग हो जाती है हार्ट में, और जब एक्स्ट्रा फीलिंग होती है तो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं. दैट्स व्हाई द पेशेंट सेइंग कि he has a strong thump in the chest followed by missed beat. Okay, so let's see an example sentence. So history was given by the patient herself and seems to be reliable. According to her, she was apparently asymptomatic one day back when she suddenly developed severe palpitation while resting. Okay, while resting, which are rapid and regular, lasting for about a minute and associated with polyuria and lightheadedness, and there is no aggravating or relieving factors. Let's break down this. So, okay. See, suddenly, what is this? Onset हमने बता दिया, develop severe, severity हमने बता दी, severity, palpitations हमने कंफर्म किया, अब यहाँ कंफर्म किया कि हाँ ये palpitations ही थे. Okay. While resting, which is rapid and regular, okay, that is in progression हमने बताया उसका. lasting for about a minute, that is duration हमने बता दिया. associated factors बता दिए हमने, associated factors, okay, बता दिए. and aggravating and relieving factor here is aggravating or relieving factors. Okay, that's all. So in this way you can write history, HOPI for palpitation. Further, see, and also patient has no history of syncope. So ये history देख के आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? तो it is like patient is suffering from SVT. Okay, because the patient is experiencing the beats are rapid है, beats regular है. तो regular है तो सबसे पहले डायरेक्टली ये बता रहा है कि atrial fibrillation तो नहीं हो सकता, extra systole भी नहीं हो सकता, because both are irregular. Okay, एंड यहाँ पे लिखा हुआ कि एसोसिएट विद पॉलीयूरिया के साथ एसोसिएशन है. पॉलीयूरिया दो कंडीशन में मिलता है, एसवीटी में मिलता है, तो एट्रियल फिब्रिलेशन में मिलता है, एंड लाइट हेडेडनेस भी हो रही है. तो इट इज़ मोर लाइकली कि ये जो हिस्ट्री लिखी हुई है ये एसवीटी की है. जरूर नहीं कि हमेशा इतनी क्लासिकल थिंग्स मिले ही. सो देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ सिनकोप. तो सिनकोप की हिस्ट्री किस में मिलती है? वीटी में. तो वीटी एक तरीके से रूल आउट हो सकता है. और हमने जो आखिरी में 2 पॉइंट्स लिखे थे कि देर इज़ नो हिस्ट्री ऑफ एनी एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन. कोई एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन नहीं है. तो एग्जिस्टिंग हार्ट कंडीशन होती है तो उसकी वजह से कौन सा एरिथमिया हो सकता है? अगेन दैट इज कैन बी ड्यू टू वीटी. नो सिग्निफिकेंट फैमिली हिस्ट्री. अगर फैमिली में सडन कार्डियक डेथ की हिस्ट्री होती है, अगेन पॉइंट्स आवर डायग्नोसिस टुवर्ड्स वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया. ओके, सो ये है. Okay. So thanks for watching this video. If you like the content, please go and like the video, share and do subscribe. Thank you.